This meeting is being recorded. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to tonight's webinar. Tonight's topic is psychology of manipulation, and we have Ms. Ushna with us. So, on behalf of Mental Health Amen Foundation, I would like to welcome her. She also works with us as a psychologist and in our education department. Now, I would like to give you a brief introduction about Mental Health Amen Foundation before we start. We have four main departments. So we have been operating since 2022, and this foundation was founded by our CEO, Ms. Amen, who is a clinical psychologist. So our departments include the clinical psychology department, through which we provide pro bono services for mental health services to people that cannot afford it, because we're trying to break the barriers of affordability. We also have our social media department, through which we manage our social media pages and provide awareness to the local public. We also have our educator department, through which we give webinars and workshops, also for awareness, not only for lay people, but also for professionals. And we also have an up and coming donations department, because we are, again, trying to break the barriers of affordability and raise money for people that might need it. So for tonight's webinar, like I said, it is on the topic of psychology of manipulation. And we have Ms. Ushna Asad with us, and she is very, very talented, and she's a great researcher. So you're going to have a good time tonight. So Ms. Ushna, over to you. You can start now, Ms. Ushna. You're muted. Ms. Ushna, you're muted. Okay. Are my slides visible? Yes, you're audible too, yeah. It's all good. Okay. Hello, everyone. My name is Ushna. I am a clinical psychologist and a researcher at Benazir Bhutto Hospital. The reason I chose this topic is because हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत आसानी से manipulate कर देते हैं. So this topic will help you how to defend yourself from people who are trying to manipulate you. So before we know what is the psychology of manipulation, we need to understand what is dark psychology. तो काफ़ी मिथ्स हैं कि डार्क साइकोलॉजी का ताल्लुक जिन्नात और काला जादू इन सब से है. It is not true. Dark psychology is not easy to define because it is actually, some people say that it is the art and science of mind control and manipulation, while others think कि ये एक डिफेंस के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हम अगले से किस तरह बच सकते हैं. The actual definition of dark psychology, which I found in the book that I will be sharing it in the end, is the deep understanding of thoughts, feelings, emotions, personality, and development. जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, विच आर यूजुअली द सीरियल किलर्स एंड द क्रिमिनल्स, जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, इम्पल्सिविटी जिनमें बहुत हाई होती है, वो बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी के मसले, अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े मसले भी सॉल्व कर सकते हैं. उन लोगों को डार्क साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है बिकॉज दे कैन ईजिली कंट्रोल एंड मैनिपुलेट अदर पीपल. डार्क साइकोलॉजी हैज़ a dark triad. So initially dark triad में 4 पॉइंट्स थे: नार्सिसिज्म, मैचिवलिज्म एंड साइकोपैथी. इसके साथ एक और आता था सेडिस्ट. अब रिसेंट टाइम्स में उन्होंने सेडिस्ट को हटा दिया बिकॉज सेडिस्ट इज द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द डार्क ट्रायड. पहले मैं सेडिस्ट बता देती हूँ बिकॉज आई थिंक पहले मैं ये बाकी 3 बता देती हूँ एंड देन द सेडिस्ट, क्योंकि सेडिस्ट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3. मैचिवलिज्म, इसके नाम में विलन आ रहा है, विलन. ओके, तो इसका मतलब अगर मैं पूरे डार्क ट्रायड में बताऊं तो these people are the master of manipulation, और ये सबसे dangerous लोग होते हैं. The definition is written in front of you that it is a kind of personality trait that refers to the unemotional people who manipulate and regularly deceive others. इनका रोज का काम सिर्फ यही होता है कि वो झूठ बोलते हैं और वो आपको बहुत आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको मैनिपुलेट कर देते हैं और आपको नहीं पता चलता. तो मैचिवलिज्म, they usually do white collar jobs.
हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उनमें ये ज़्यादातर लोग होते हैं जो खुद को सॉरी आपके काम का क्रेडिट खुद को दे देते हैं, मोस्टली द मैनेजर्स और द बॉसेस, कि वो सारा काम करवा देते हैं एंड देन इन द एंड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और आफ्टर द प्रेजेंटेशन आफ्टर व्हेन दे गॉट द बिड वो बताते हैं कि ओ ये मैंने किया था। तो ज़्यादातर ये इनिशियल स्टेजेस में उन्हीं आते हैं एंड देन दे जो डार्क साइड ऑफ मैचिवनलिज्म होती है वो होती है सीरियल किलर्स की। The signs are signs of duplicity, charming, intimate, toxic, all's well that ends well, and try to get ahead. To define all of them, I would say कि जो signs of duplicity है, it is actually my favorite part. This type of personality in dark triad is because कि there are many different personalities जहाँ पर हम इंसान को समझ पाते हैं in dark triad. So the first is the signs of duplicity. ये लोग जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनको किस वक्त क्या चाहिए, वो उस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं। अगर किसी को उनको बहुत बड़ी चीज़ चाहिए, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा किसी का चाहिए, तो वो उनकी पर्सनालिटी वहाँ डिफरेंट हो जाती है और बाकियों के साथ डिफरेंट पर्सनालिटी होती है एंड दैट इज़ नॉट वेरी ईजी टू फाइंड कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि इनकी पर्सनालिटीज़ कब कब स्विच हुई हैं। सेकेंड थिंग इज देट एक्सट्रीमली चार्मिंग एज इन पर्सनालिटी वाइज एंड लुक्स वाइज एज वेल, क्योंकि इनको पता होता है कि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत आसानी से और उनकी अटेंशन किस तरह ये लोग ले सकते हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस, फेशियल फीचर्स, बॉडी एक्सप्रेशन, टोन, वर्ड्स, जिससे लोग ऑब्सेस हो जाए या अट्रैक्ट हो जाए इनकी तरफ, दे नो एवरी आर्ट ऑफ इट। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन। They're intimate, toxic as well, क्योंकि if they're in your life or in someone's life, you know, तो आपको ये पता होगा कि they're never stable. They always spread negativity around anyone's life. Next one is all's well that ends well. All's well that ends well, इनका सिर्फ एक ही रूल होता है and that rule is to follow manipulation. All's well that ends well is a phrase जहाँ पर I use this because जहाँ पर इनको इनका फायदा मिल रहा है, that means it's going well. Usually we follow rules, we have ethics to follow, we have rules to follow, but इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता. Try to get ahead. इनको सिर्फ सक्सेस चाहिए होती है, भले इनको किसी तरह मिल जाए, कोई गलत काम करने से मिल जाए, but they just need success. नार्सिसिज्म, आई हर्ड के नार्सिसिज्म पे एक वेबिनार हो चुका है, सो आई एम नॉट गोना गो डीप इनटू इट। नार्सिसिज्म हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में नॉर्मल देखी जाती है, बट आफ्टर प्यूबर्टी इट इज़ अ डिसऑर्डर। इस तरह के जो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, देर सेल्फ ऑब्सेस्ड, वो बस खुद में रहना चाहते हैं, वो बहुत एरोगेंट होते हैं। And the signs of narcissism are constant attention. They need attention every time. They need control, कि वो किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल कर पाए, उसके decisions वो खुद लें। The one thing narcissistic person does not have is their communication abilities. They do not know how to communicate even in their daily lives. They don't know how to communicate with people. वो कुछ भी बोल देते हैं. Guilt उनमें नहीं होता. Guilt वैसे इन तीनों personalities में नहीं है. बट नार्सिसिज्म में इसलिए आ रहा है क्योंकि नार्सिसिज्म एक इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड द अदर्स आर नॉट। तो हम यहाँ पे नो गिल्ट का एक लाइक कॉल इट एज अ सिम्टम यहाँ पे डालते हैं। फियर एंड एंजाइटी, जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो अपने उनके फियर्स होते हैं एंड दे आर ऑल चेन्ड अप इन देयर अनसीन फियर। इनको होता है कि यार दूसरों को मेरी ये कमजोरी पता ना चल रहा है। वो कोई भी हो सकता है, कोई उनका कोई गिल्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है और वो किसी को बताना नहीं पसंद करते। एंड दे नॉट ओनली एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन बट दे ट्राई टू ट्रांसफर दिस टू अदर्स एज वेल। एंड द लास्ट वन इज सॉरी नॉट द लास्ट, सेकंड लास्ट इज स्प्लिटर्स। ये आसानी से कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी तोड़ देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स हियर, कि इनके लिए बहुत आसान होता है एक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना, एक बात को ख़त्म कर देना या बात को घुमा देना। दे आर वेरी प्रो एट इट। लास्टली दे आर परफेक्ट। उनको लगता है कि दे आर नेवर रॉन्ग।
तो अगर हम परफेक्शनिज्म इन तीनों पर्सनालिटीज में लाएंगे तो नार्सिसिज्म इज द मिस्टर एंड मिस परफेक्ट. Psychopaths. Psychopaths are different from sociopaths. To those जिनको ये नहीं पता कि सोशियोपैथ क्या होता है, सोशियोपैथ दे मेक इट वेरी क्लियर कि उनको अगले की परवाह नहीं करनी और अगला क्या सोच रहा है उनको नहीं फर्क पड़ता. दे मेक इट वेरी क्लियर. While psychopaths, they pretend that they're caring. And psychopaths are, they usually have no empathy or remorse, but sociopath, they do have a little ability to feel empathy. Sociopaths are impulsive, psychopaths are way more impulsive. Signs of psychopaths, they're very good at lying. They're extremely good at lying, and they're out of control. They don't have long term planning. उनका कोई future goal set नहीं होता. जैसे बाकी दोनों में है कि if other two personalities are in criminals, तो दे हैव अ प्लान कि उन्होंने विक्टिम को किस तरह अप्रोच करना है, किस तरह उसको मारना है. एवरीथिंग इज प्लान आउट, बट दे डोंट हैव एनी प्लानिंग. इनके रिलेशनशिप्स बहुत होते हैं. दे यूजुअली आर नॉट हैप्पी विद वन पर्सन. दे आर एक्सट्रीमली इम्पल्सिव एंड दे बिलीव इन द ब्लेम गेम. उन्होंने खुद पे ब्लेम नहीं करना, बस वो दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं कि इवन इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम साइकोपैथ, आई एम नॉट एक्चुअली, बट लेट्स सपोज, एंड आई वुड नेवर ब्लेम कि ये मेरे से हुआ है. आई वुड जस्ट पॉइंट इट आउट टू समवन एल्स टिल द एंड, ताकि सबको यकीन भी मैं दिला दूं कि अगले बंदे का ही कसूर है और मैं बीच में से निकल रहा हूँ. So let's come to the main topic, how they manipulate you. पहली चीज तो ये है कि सिंपैथी के बारे में बात करेंगे. सिंपैथी इज अ वेरी पावरफुल फीलिंग. अगर कोई जिंदगी के बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो नेचुरली पीपल हेल्प देम, ठीक है. एंड उन्हीं पीपल वाले वर्ड में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको वो कमजोरी पकड़कर आपको मैनिपुलेट करते हैं. तो जब हम कहते हैं कि मुश्किल वक्त में गैरों ने साथ दिया, उन गैर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भी होते हैं, लेकिन वो आपको दे मैनिपुलेट यू, दे फर्स्ट डाइवर्ट योर अटेंशन. वो कभी भी एक बात पर नहीं होता. अगर आप कोई भी बात कर रहे हो एंड देयर लाइक ओके इस पर कसूर मेरा भी बन रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग ओके विद दिस कॉन्वर्सेशन, तो वो बात चेंज करते हैं. दे डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस. डिनायल. ओके, एंड फर्स्ट पहले पॉइंट में मैं बताना भूल की डाइवर्ट अटेंशन में कि हाउ आप इन ऐसे लोगों से बच कैसे सकते हो. इवन इफ यू फिगरिंग इट आउट कि वो आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आप ये देख लो कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगले इंसान की कमजोरी क्या है. इनिशियली आपको नहीं पता होता, बट आफ्टर स्पेंडिंग टाइम यू गेट टू नो द पर्सन. एंड व्हेन यू नो कि आपको उनका गिल्ट पता है, उनका कोई ऐसी कमजोरी पता है आपको, तो दे कैन नॉट कंट्रोल यू आफ्टर दैट. तो अगर वो आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं तो आप ये उनको बता दो कि एक हिंट दे दो कि ओके आपसे भी ये गलती हुई थी, तो दे कैन नॉट मैनिपुलेट यू उस वक्त पर. डिनाइल. डिनाइल के बारे में ऐसा है कि एक ऐसी फीलिंग है दैट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, ठीक है. तो इफ यू डोंट हैव हार्ड एविडेंस अगेंस्ट समबडी और अगला बंदा बस कह रहा है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, बट एक्चुअली में उसने कहा था और वो कह रहा है कि उसने नहीं कहा, और आपके पास एविडेंस नहीं है, तो सब कुछ आप पर आ जाता है. तो वो डिनाइल फैक्टर में आ रहा है कि एक बंदा कंप्लीटली डिनाई कर रहा है जो भी आप कह रहे हो और अगले बंदे उस बंदे की बात सुन रहे हैं. तो डिनाइल इज अ वेरी डेंजरस, स्पेशली व्हेन यू ट्रस्ट योर सोर्सेस. आप फिर आई वुड कॉल डिनाइल एज अ धोखा. मतलब हर चीज ही धोखा है, लेकिन डिनाइल इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ धोखा. तो इसको हम कैसे पकड़ते हैं? जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो एक्चुअली बहुत हेल्प करती है. इफ एनीवन हु नोस एनएलपी, उनको पता चल जाता है कि फेशियल मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स से आपको पता चल जाता है कि एक इंसान जो है वो झूठ कब बोल रहा है, डिनाइल में कब है, या वो अटेंशन कब डाइवर्ट कर रहा है. नेक्स्ट कम्स सेडक्शन. जो लोग बहुत जानते हैं कि अगले इंसान को मैनिपुलेट कैसे करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि एक पर्सनालिटी ट्रेट है मैचिवलिनिज्म, जिसमें आप बहुत चार्मिंग होते हो,
ठीक है, तो दे यूज दिस फैक्टर, seduction फैक्टर, टू मेक यू फील ट्रूली स्पेशल, बट देन एंड अप सिंपली गेटिंग व्हाट दे वांट। तो दिस इज द मेन पॉइंट कि जब आपको एक बंदा बहुत स्पेशल फील करवा रहा है एंड वांटेड समथिंग इन रिटर्न, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन मैनिपुलेशन। लास्ट वन इज द मैनिपुलेशन, जिसको मैंने एंड पर इसलिए रखा था बिकॉज मैनिपुलेशन वर्ड तो छोटा है बट इट्स एक्चुअली द मॉन्स्टर वर्ड। मैनिपुलेशन आपको कैसे पता चलता है कि वो आपको मैनिपुलेट करते? एक तो ऊपर के जितने पॉइंट्स हैं ये भी हैं, लास्टली आपको नोट करना होता है कि सारे जो मैनिपुलेटर्स हैं वो आपका फायदा तो ले रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर मास्टर्स ऑफ देयर क्राफ्ट। उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो छोटी सी बात बोलेंगे ना, उनको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, वो उसी से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो आप बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकते हो। मैनिपुलेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ ज़िंदगी में आम आम रोज़ की ज़िंदगी में होती रहती है। हमारे अपने भी करते हैं, हमारे दोस्त वगैरह जो भी हैं वो बहुत आसानी से करते हैं। लेकिन फ़र्क आपको तब पड़ता है या फ़ील आप तब करते हो जब वो बहुत बड़ी मैनिपुलेशन में आते हैं। एक तो छोटी-मोटी होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि छोटे झूठ बोल लिए, दैट्स फाइन, बट छोटी मैनिपुलेशन लीड्स टू द बिग मैनिपुलेशन। Tips and techniques to defend yourself. Okay, first one is watch how the person stands. ये सिर्फ शुरू में नहीं पता चलता है आप लोग को कि अगला बंदा मैनिपुलेट कैसे कर रहा है। when you get to know the person, when you have spent enough time with the person, आप उसके body behavior, the words they're saying, आप उससे पता लगा सकते हो कि अगला बंदा मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं। और आपने इतना भी उनको देखना नहीं होता कि अगले बंदे को पता चल जाए कि ओके आप उसके एक एक स्टेप को नोट कर रहे हो। सो वॉच हाउ द पर्सन स्टैंड्स, आपने ये ऑब्जर्व करना है कि वो उनकी चाल में फर्क आता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हर क्रिमिनल क्राइम सीन पे कोई ना कोई क्लू छोड़ के जाता है। मैनिपुलेटर्स भी ऐसा करते हैं कि वो पूरा वक्त आपके साथ ठीक रहेंगे बट कहीं ना कहीं पर वो आपको एक क्लू दे जाते हैं। जैसे उनके चलने के तरीके में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, व्हेन दे आर एंशियस तो दे वुड वॉक फास्ट, और यूजुअली मैनिपुलेटर्स दे ट्राई टू पुट अ मास्क ऑन देमसेल्फ कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो कभी कभार इस बात को पकड़ने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि आप नहीं पकड़ पाते हो उसको, लेकिन फिर भी अगेन क्लूज छोड़ देते हैं। ऑब्जर्व हाउ दे टॉक टू यू। I don't know if you guys have watched the film It Ends With Us. उसमें the main character is the main manipulator. The film is based on domestic violence. At first, they would talk to you in a very sweetly manner. कि they will make you feel special, but again वो कोई clue दे देते हैं, they would get aggressive, they would get angry at you even if you do a teeny tiniest thing. तो आप उनके बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर चेंज होता है आपके साथ। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको नोट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिफेंड योर सेल्फ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैनिपुलेटर्स जो हैं वो उनको खुद नहीं समझ आ रही होती कि उनको आपसे क्या फ़ायदा चाहिए होता है। इट्स वेरी रेयर कि कुछ मैनिपुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता उनको आपसे क्या फ़ायदा चाहिए, बट दे आर जस्ट इन अ हैबिट टू मैनिपुलेट पीपल। तो वो इतने डेंजरस नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनको कोई फ़ायदा चाहिए आपसे। The last one is don't try too hard to throw them off guard. जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो ज़्यादातर वाइट कॉलर जॉब्स में ही आपको मिलते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैनिपुलेटिव पीपल इन अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल जो भी बिजनेस सेटिंग में हो, दे आर मच लेस लाइकली टू लेट देयर इमोशंस आउट। और मतलब वो बहुत कम होता है कि मैनिपुलेटिव लोग रोएं या अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, लेकिन जब वो करते हैं और वो थोड़े मैनिपुलेटिव वे में करते हैं इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जिनको लगता है कि इससे मुझे फायदा चाहिए, दे वुड स्पीक आउट टू इन फ्रंट ऑफ देम। उनके फेशियल मसल्स ट्विच करते हैं जब उनको गुस्सा आता है, या दे वुड मेक अ फिस्ट ऑन देयर हैंड्स। गुस्से में जो भी आप लाइक
मैनिपुलेटर्स, सीरियल किलर्स की आदत होती है कि वो अपने हाथ बंद कर लेते हैं, अपनी फिस्ट को टाइट कर लेते हैं, उनके जॉस क्लेंच कर रहे होते हैं। तो दीज आर द साइंस जो जहाँ पर आपको अपनी जान भी बचानी, एंड दीज आर द साइंस टू नो कि अगला बंदा इज नाउ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, क्योंकि वो जो भी बोलेगा अपने उस इमोशंस में आपको कहीं ना कहीं वो मना लेगा, एंड देन यू विल इवेंचुअली ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन. Okay, so I was talking about the sadist part actually. Sadist पहले dark triad में included था, but this is the latest dark triad that was introduced by Paulus and Williams. Ignore my spellings of by, please. Um, sadist was also included in this triad. Sadist में ये सारे personality traits आते हैं, narcissism, materialism and psychopathy. ये तीनों आते हैं. But the main point is the sadists enjoy being cruel. उनको मजा आता है अगले को तकलीफ देने में, और they have no guilt. Usually जो sadist लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पुलिस जॉब से, मिलिट्री जॉब से, क्योंकि वो आसानी से लॉफुली अगले इंसान को तकलीफ दे सकते हैं. Okay, how many of you know Theodore Bundy? Okay, he's a very famous serial killer and actually the first ever criminal जिसका पूरा ट्रायल ब्रॉडकास्ट हुआ था टीवी पे. It's 1989 1978 की बात है ये. He was arrested in 1978 and he was executed in 1989. He is a real life narcissistic, machiavellian and psychopath. Sadist भी इसको हम कह सकते हैं. इसने कन्फेस किया था ऑफ 30 मर्डर्स, लेकिन इन टोटल 100+ मर्डर्स इसने किए हैं. He was executed in electric chair in 1989. और the most strange part about his story is कि ये अपना केस खुद लड़ रहा था. He had a police job. He has a degree in psychology and in law as well. और ये अपना केस खुद लड़ रहा था ओवरऑल. और शुरू में when he get to know that people are after him, तो इसने कहा कि it's not me. He would change his looks से, would कभी अपनी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी क्लीन शेव हो जाएगा, but he was actually a police officer. तो इसने अपना केस खुद लड़ना शुरू किया when he was actually arrested, when he came into the lights of other policemen. इसने कहा मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, and he escaped by solving his case actually. He escaped twice. First time जब इसे murder charge लगा था, तो that was the time he decided कि ये अपना केस खुद लड़ेगा. और ये एक कोर्ट हाउस लाइब्रेरी होती है टू फाइंड द केस स्टडीज रिलेटेड टू हिज केस. उसने वहां से एक्चुअली जंप कर लिया था, बट ही वाज अरेस्टेड 8 days लेटर. दूसरी बार जब ये एस्केप करने की कोशिश इसने की थी, इसने अपने जेल सेल की सीलिंग में एक होल बनाया था, और उसके लिए ही लॉस्ट 30 pounds ताकि वो उस होल से निकल जाता है. एंड अथॉरिटीज को 15 घंटे तक पता ही नहीं था कि टेड बंडी गायब है. And then later in 1978 जब ये फ्लोरिडा पहुंचा after the second escape, उसके बाद वहां पर इसने killings की. he is actually a rapist. इसको necrophilia diagnosed हुआ था. And in 1978 he was arrested. And then for 10 years इसका पूरा trial broadcast हुआ. And then finally in 1989 इसके जो 2 charges थे, इस पर murder charges थे, उसकी वजह से ये execute हो गया था. The sad part is कि पुलिस को पकड़ने में इसको काफी टाइम लग गया था. लाइक दे कुडंट फिगर आउट कि जिस इंसान के साथ वो लोग काम कर रहे हैं वही इंसान इज द मास्टरमाइंड ऑफ दीज किलिंग्स. और अभी भी टिल टुडे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्स्ट सीरियल किलर्स, थियोडोर बंडी रैंक्स ऑन नंबर 3. इस केस को आई थिंक 89 में ये केस खत्म हुआ था, बट स्टिल हॉन्ट्स टुडे. एंड इवन जो लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी परस्यू कर रहे हैं वो इस केस को पढ़ते हैं अभी भी. So that's it from my side. Thank you, everyone. Thank you, Ms. Ushna. That was very, very insightful. Now I'm going to open the floor for questions in case somebody has some. Does somebody have a question? Yeah, I want to ask over here that Ms. Ushna said that
if a manipulator is manipulating you in some way, so you must have some weakness of that person, and you have to encounter that in that situation, and in that way that person is going to be get stopped. But don't you think that this is not the like you can say a very positive, or you can say in long term it is not feasible, it is not you can say long lasting, that you just start getting out someone's weaknesses and just throw that on him, or start blaming other person. If someone is manipulative, so it's a toxic personality, so you have to just stay away from that person, instead of just finding out his or her mistakes or his or her weaknesses, and making your personality a little bit more toward like him or her. That's my I viewpoint. yeah, I get it. मैंने पहले कहा था कि in order to know the manipulator आपको वक्त गुजारना पड़ता है, तो जब आपने उसका वो guilt factor पकड़ लिया and you have confessed it to him or her, उसके बाद आपको पता है कि वो अगला बंदा वहां पर आपको manipulate नहीं कर रहा, तो why would you go back to the same person? You can use this factor once or twice, but not forever. You can be not with a person for your entire life, with a guy or with a girl जो आपको manipulate बहुत आसानी से कर रहा है. So guilt factor is the only way, the known way right now कि आप किस तरह खुद को manipulate होने से बचा सकते हो. Do we have other questions? Sana, was I clear? Yeah, but still I have one more theory in this, कि अगर वो बंदा जो है वो एम्पैथेटिक नहीं है, और ना ही उसके जहन में, ना वो कभी अपनी किसी भी गिल्ट को एक्सप्रेस करता है, और नार्सिसिस्ट है, तो फिर वो कैसे हम उस चीज को फाइंड कर सकते हैं? एंड स्टिल देयर आर सम पीपल which have their guilt inside, but they never ever confess in front of you, and they never let you speak about it. और अगर आप उनके सामने उनके गिल्ट को कहेंगे भी, तो they will never जो है वो accept that. So what do you think about it? By spending time with them, even if they're not opening up in a year or in a 2 or even in 10 years, वो एक ना एक time पर आके सब बता देते हैं. And that's the art that psychologists know, कि आपको अगले इंसान से कैसे बुलवानी है बातें. Or even if you're not a psychologist, but by spending a time with the other person, even for a day or 2 or a year or more than 10 years even, you can know the other person is now opening up and is now trusting you. So you have to make that trust level. Okay, I understand. Okay, we have one more question in the chat from Miss Anush. She's not in the call right now, but you can answer it still. Okay. Can you shed some light on the difference between social and psycho? Okay. Psychopaths, they don't have the conscience. They don't know what they're doing. Sociopaths are a little bit aware of what they're doing. Sociopath बहुत directly बता देते हैं कि they don't want to care about this person, or they don't care कि अगला इंसान क्या सोच रहा है उनके बारे में. But sociopaths, they pretend that they're caring. In real, they're not caring. Sociopaths, they do have limited ability to feel empathy or remorse. They do hurt you, but they do feel a little guilt after that. But psychopaths, they don't. They lack the feeling of empathy and remorse thing, and they're very cold-hearted. They just don't care कि अगला बंदा उसके साथ मैंने कितना गलत किया है. उनको बस मजा आता है उन्होंने गलत किया. While sociopath, they do feel guilt. Okay, Miss Aisha Irfan has her hand raised. Yes. Hi, Miss Ushna. I just want to ask you that if this is specifically to psychopaths, if they're given the right treatment or interventions, can they become functioning members of the society?
Can they blend in the society somehow? And if yes, which treatments or interventions, according to you, work for them? Well, there is no study that supports कि अगर हम उनको treatment या interventions दें तो they can live. Yes, they do have that insanity defense in court. वो इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं. उसके बाद they're sent to the psychiatric institute for the rest of their lives, but they cannot be treated. But about the therapies to make them a normal person, we can try. We can give them some therapies, some interventions of CBT. हम उनको normal I forgot the name of the therapy. Wait, let me. It's a name. CBT intervention एक जैसी मुझे याद आती है, I will tell you. Apart from that, हम उन पे प्रोजेक्टिव टेस्ट करते हैं जस्ट टू नो बेटर कि वो आफ्टर एवरी मंथ हम उन पे प्रोजेक्टिव टेस्ट कर सकते हैं जस्ट टू नो कि उनकी माइंड में कितनी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और कितनी नहीं. बट अगेन देयर इज़ नो स्टडी दैट प्रूव्स के दे कैन सर्वाइव इन द सोसाइटी. Okay, thank you, Miss Ushna. Miss Mariam Zubair has her hand up. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटी में हमें अपने इर्द गिर्द अक्सर नजर आता है ऐसे मैनिपुलेटर्स, ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द, इन्होंने अपनी रूटीन में जैसी ये चीजें ऐड कर ली हैं. क्या जैसे कि हर दूसरा बंदा इन तरीकों को अपना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये तरीके ये सब लोग इनमें से किसी कैटेगरी में फिट आते हैं, या फिर जस्ट वो उनकी बिहेवियर में चीज आ गई है. और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि हम किसी भी मैनिपुलेटर को या ये रियलाइज नहीं करवा सकते कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझ रहा होता है कि मैं बहुत बहुत पहुंची हुई चीज हूँ जो मैं दूसरों को बेवकूफ बना लेता हूँ. क्या उसको इस चीज को रियलाइज नहीं करवाया जा सकता? Okay, addressing to your first question, सबसे पहली चीज़ जो मैनिपुलेटर्स जो हमारे इर्द गिर्द दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी वो सबसे पहले आपके आगे रोते हैं और वो उनका रोने का पैटर्न सेम होता है, उनका टॉपिक सेम होता है रोने का. कि वो अगर आपसे साल बाद भी मिलेंगे तो वो एक ही बात पे रोएंगे जो साल पहले रोए थे. तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू नो कि एक साल में अगर इनका मसला ठीक नहीं हुआ, वो दोबारा इसी बात पर ही रो रहे हैं. You can help them of course first time if you know the person, but अगर हर बार टॉपिक सेम है, मसला सेम है, तो you have to step back. What was the second question? मैम सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम इन मैनिपुलेटर्स को ये रियलाइज नहीं करवा सकते कि हाँ, realization. The type of personality manipulators have, they don't want कि उन पर blame आए. तो अगर आप उनको रियलाइज करवा रहे हो, या अभी जैसे आई थिंक यू यूज द लाइन के ये गलत है, आप अगर उनको डायरेक्टली बोलोगे तो वो गुस्से में आ जाते हैं. दे कैन इवन स्लैप यू. तो हम डायरेक्टली उनको ये बोल नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हो. आपको पता है आप गलत, उनको कि वो गलत कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्टेप बैक. यू हैव टू मेक योर एक्शंस बिलीवेबल. अगला बंदा जो मैनिपुलेटर है वो आपसे आके पूछे, ताकि उसको तब रियलाइज हो जाए कि अच्छा अब he or she has caught me, and now that manipulator will find another person to manipulate. मैम मैं एक लास्ट क्वेश्चन है, जी जी. क्या ये जो मैनिपुलेशन है ये लर्न बिहेवियर है, या ये फिर हम कह सकते हैं कि लर्न भी किया जाता है पर्सनैलिटी के अंदर होने के साथ साथ? क्या ये लर्न बिहेवियर भी है? जी, ये लर्न बिहेवियर है. तो लर्न बिहेवियर को तो मैम रियलाइज करवा के बदला जा सकता है. रियलाइज करवा सकते हैं, बट लर्न बिहेवियर को भी अनलर्न करने के लिए आपको काफी टाइम लगता है. लर्न बिहेवियर आप अपने एनवायरनमेंट, अपने फैमिली से जो सीखते हो. I'm not talking about the genes here because manipulators का जो personality type, it's not in their genes.
लर्न बिहेवियर में जब हम उनको रियलाइज करवा रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि दे आर डूइंग इट रॉन्ग, दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड विद यू, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है तब तक, एंड बाय द टाइम वो और आसानी से आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं. यू आर जस्ट गेटिंग टू नो दैट पर्सन. आपको नहीं पता चलता कि आपने एक इंसान के साथ 1 साल गुजारा, 2 साल गुजारा, एंड यू जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो दैट पर्सन while the other person is trying to manipulate you every time. Okay, ma'am. So the Thank you more so you much. yeah, so the more you know to get to know the person, the more उसको time मिल जाता है अपनी powers को और powerful बनाने के लिए. Okay, so we have less than a minute left in this meeting. So if nobody has other questions, we can just wrap up the webinar. Is that fine? Okay. Okay, so thank you so much for joining, Ms. Ushna. If anybody You're welcome. if anybody has any questions, so you can put them in the webinar chat. But thank you so much for joining, and we will see you in the next one. And please keep giving webinars for Mental Health Amen Foundation. Your webinars are very, very insightful. So thank you so much for joining, everybody, and we'll see you in the next one.